Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine at your homes. Welcome to online English class. This is Rashima, lecturer in English, presently working in Arohi Model Senior Secondary School, Ramgarh Pandwa, Block Kalayat, District Kaithal, Department of School Education, Haryana. This video is brought to you in collaboration with SCERT Haryana and Utkarsh Society under Department of School Education for EduSet Telecast, Haryana. I again welcome you all to my English class. Dear students of class 10th, today we are going to do Glimpses of India from your NCERT book First Flight, from which we will do Part 1, A Baker from Goa. So let's begin. Before we start the lesson, we'll have a little discussion. The point of discussion are: the very first point of discussion is what images of people and of places come to your mind when you think of your country. जब आप अपनी कंट्री इंडिया के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में किस तरह के लोगों की और प्लेसेस की इमेजेस आती हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन हरियाणा, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ हरियाणा एंड हरियाणवी पीपल? You can discuss this point with your friends and pen down in your notebooks. It will be very interesting. Point number 2. What parts of India have you lived in or visited? Can you name some popular tourist destinations? आप इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में रह चुके हो या विजिट कर चुके हो, और इसके साथ साथ क्या आप इंडिया के कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता सकते हैं? फॉर योर हेल्प आई हैव गिवन सम ऑफ द फेमस इंडियन टूरिस्ट प्लेसेस and you can write down your experience about these places, about the people. Whatever you have experienced, you can write down as a travelogue. The third point of discussion is, you may know that apart from the British, the Dutch, the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which parts of India show French and Portuguese influences? बच्चों, क्या आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स के अलावा डच, फ्रेंच और पुर्तगीज लोगों ने भी हमारी कंट्री की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है? Can you say which parts of India show French and Portuguese influences? क्या आप लोग बता सकते हैं कि इंडिया के कौन से पार्ट्स पर फ्रेंच या पुर्तगीज लोगों का इन्फ्लुएंस दिखता है? तो आज हम जिस लेसन के बारे में पढ़ने वाले हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसमें हम देखेंगे दैट गोवा इज अ प्लेस वेयर वी कैन सी फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस. The culture of Goa is entirely different from the rest of India. And in this lesson, we will have a pen portrait of a traditional Goan baker who still has an important place in his society. आज हम एक गोवा के विलेज बेकर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका आज भी इस सोसाइटी में एक important place है. What changes take place in the life of the baker with the passage of time? A glimpse of presented in this extract. उस विलेज के बेकर के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ, वो इस एक्सट्रैक्ट में हम एक ग्लिम्स उसका हम देखेंगे, एक झलक हम उसकी देखने वाले हैं. Before reading the chapter, let's meet the author of the lesson, A Baker from Goa. He is Lucio Rodrigues. Lucio Rodrigues, born in 1916 and died in 1973, was a great Konkani essayist. Lucio Rodrigues
एक कोंकणी एसेइस्ट थे. कोंकणी इज अ लैंग्वेज ऑफ गोवा. ही रोट सेवरल आर्टिकल्स इन इंग्लिश एंड कोंकणी. लूसियो रॉड्रिक्स ने इंग्लिश और कोंकणी में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं. ही सर्व्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन मुंबई एंड गोवा. उन्होंने मुंबई और गोवा के कॉलेजेस में एक इंग्लिश प्रोफेसर के रूप में काम किया है. The theme of the essay. The writer presents a pen portrait of a traditional Goan baker who still has an important place in its society. जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि A Baker from Goa एक ऐसे है गोवन बेकर के बारे में जो हमारे एक परंपरागत गोवा के बेकर के बारे में बताता है, जिसकी आज भी इस सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है. Elders still think fondly of the famous Portuguese loaves of bread. गोवा के जो एल्डर्स हैं वो आज भी पुर्तगीज लोगों के द्वारा बनाए गए लॉव्स ऑफ ब्रेड को बहुत ही फॉन्डली मीन स्नेह से याद करते हैं. द फैमिली ट्रेडिशन इज स्टिल कैरिड ऑन इवन टुडे बाय द न्यू जनरेशन ऑफ बेकर्स और पैड्स इन गोवा. बेकिंग करने की जो फैमिली ट्रेडिशन है वो आज भी नई जनरेशन बेकर्स की नई जनरेशन द्वारा आज भी गोवा में कैरी की जा रही है. Even today, marriage gifts are meaningless without the sweet bread or the bowl, just as a party or a feast loses its charm without Goan bread. आज भी marriages के gifts sweet bread या bowl के बिना meaningless हैं. और इसी तरह से कोई भी पार्टी या feast is a grand party. एक grand party बिना गोवा के ब्रेड के अपना चार्म बिल्कुल खो देती है. तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से गोवा में ब्रेड्स की इम्पोर्टेंस है. स्वीट ब्रेड जैसे हम मीठी डबल रोटी या पाव कहते हैं, जैसे हमारे हरियाणा में किस तरह की मिठाइयाँ लड्डू जैसे हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है. हर मैरिज में हर पार्टी में हम इस तरह की मिठाई देखने को हमें मिलती है. उसके बिना हमारी सारी पार्टीज सारी सेरेमनीज अधूरी हैं. इसी तरह से गोवा में ब्रेड का रोल है. स्वीट ब्रेड या सिंपल ब्रेड का जो रोल है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, तभी वहाँ पर केक्स ब्रेड्स ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं. बेक्ड ब्रेड्स. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. स्टूडेंट्स, आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी जब हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे दादा दादी नाना नानी ऐसा कहते हैं कि हमारे समय में ऐसा होता था, हमारे समय में हम ये खाते थे, ये पीते थे, ऐसे खेलते थे. तो इसी तरह से राइटर हमें ये बता रहा है कि किस तरह से गोवा के जो एल्डर्स हैं, गोवा के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं. रेमिनेंसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के बारे में बहुत स्नेहपूर्वक याद करना. वो किस चीज़ को याद करते हैं? गुड ओल्ड पुर्तगीज़ डेज़, पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में. तो बच्चों, हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि गोवा में पुर्तगीज़ आकर रहे और उन्हीं पुराने दिनों के बारे में उनके जो एल्डर्स हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पुर्तगाल से रिलेट करते हैं, पुर्तगीज़ होंगे, तो इसीलिए वो भी अपने पुराने पुर्तगीज़ डेज़ को याद करते हैं और फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को भी याद करते हैं. लोव्स ऑफ ब्रेड मीन्स पीसेस ऑफ ब्रेड. तो किस तरह से वो ब्रेड्स बेक किया करते थे या खाते थे, ये बातें वो याद करते हैं. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. तो वो ईटर्स यानी कि लोव्स, वो ब्रेड खाने वाले लोग शायद वैनिश्ड हो गए हैं, गायब हो गए हैं, कहीं खो गए हैं. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उन्हें बनाने वाले आज भी हैं. शायद अब पुरानी तरह की वो जो पुर्तगीज़ ब्रेड थी वो अब नहीं बनती है, उसकी और रिफाइंड फॉर्म्स बनने लग गई हैं, मॉडिफाइड फॉर्म्स जैसे केक्स, पेस्ट्रीज़ और कप केक्स, इस तरह की चीज़ें बनने लग गई हैं. लेकिन वो सिंपल ब्रेड है वो अब शायद नहीं बनती है, लेकिन उनको बनाने वाले जो बेकर्स हैं वो आज भी वहाँ हैं. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. तो आज भी वहाँ पर मिक्सर्स यानी कि जिन मिक्सीज़ में वो मोल्ड्स बनाने के लिए
लॉफ्स ऑफ ब्रेड बनाने के लिए जो मिक्सर्स थे या मोल्डर्स होते थे वो आज भी हैं, और उन्हें बनाने वाले बेकर्स भी आज भी गोवा में हैं. Those age-old time-tested furnaces still exist. Furnaces means ovens, भट्टियाँ. तो वो पुराने टाइम टेस्टेड जो जिनमें बहुत ही अच्छे से बेकिंग की जा सकती थी, बहुत अच्छे से ब्रेड बनाई जाती थी, वो फर्नेसेस आज भी एग्जिस्ट करती हैं. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. तो उन फर्नेसेस की आग आज भी बिल्कुल कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश यानी बुझी नहीं है. ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली जलती जा रही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज भी वो फर्नेसेस में पकाना, बेकिंग करने की जो परंपरा है वो आज भी ख़त्म नहीं हुई है. आज भी उन पुरानी तरह की भट्टियों में कुछ लोग बेकिंग करते हैं. अदरवाइज़ नए तरीके के इलेक्ट्रिक ओवन्स आ चुके हैं, लेकिन ये पुरानी भट्टियाँ जो हैं वो आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. The thud and jingle. Thud and jingle means falling sound along with musical sound. कि जब किसी के हाथ में एक बड़ा सा बैम्बू स्टिक है और उसने साथ में उसके कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे घुंघरू से बांध रखे हैं, तो जब वो बार बार उसको ज़मीन पर पटकेगा तो एक तो पटकने की आवाज़ आएगी और साथ में ही उसके जो म्यूज़िकल साउंड है वो साउंड भी इस तरह से आएगी. हेराल्डिंग हिज अराइवल. हेराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग. तो वो जो बेकर था वो जब सुबह मॉर्निंग में आता था तो वो अपने आने के बारे में जो अनाउंसमेंट करता था वो कैसे करता था? थर्ड एंड जिंगल पर, मतलब बैम्बू को ज़मीन पर बार बार मार के, जिससे कि लोगों को दूर तक उसके आने की बारे में पता चल जाए. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. तो ये जो थर्ड एंड जिंगल की आवाज़ है वो आज भी कभी कभार सुनाई दे जाती है किसी किसी जगह पर. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. शायद वो पुराने पुर्तगीज़ लोग, उनके पेरेंट्स, उनके फादर आज अलाइव नहीं हैं, आज जीवित नहीं है, लेकिन उनका जो बेटा है वो आज भी इस फैमिली प्रोफेशन को, इस व्यवसाय को, अपने पारिवारिक व्यवसाय को आज भी वो कैरी कर रहा है. दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेदर इन गोवा. इन बेकर्स को आज भी गोवा में क्या कहा जाता है? पेदर. पेदर इज़ अ काइंड ऑफ बेकर. जो ब्रेड को बेक करने वाले लोग होते हैं उन्हें पेदर कहा जाता था. पुराने समय में बेक करने वाले को क्या कहा जाता था? ब्रेड बनाने वालों को पेदर कहा जाता था. तो आज भी उन्हें इसी नाम से जाना जाता है. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. नरेटर का बचपन गोवा में बीता और वो बताता है कि बचपन के दिनों में जो बेकर होता था वो ना सिर्फ ब्रेड बेचने के लिए आता था, इनफैक्ट वो हमारा फ्रेंड भी होता था, कंपेनियन और गाइड भी होता था. वो किसी ना किसी बात पर हमें समझाता था, हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस दिया करता था. ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. वो कम से कम दिन में 2 बार आता था. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. एक बार तो तब जब वो सुबह अपनी सारी की सारी ब्रेड बेचने के लिए जाया करता था, पूरा चक्कर लगाने के लिए, और दूसरी बार तब जब वो अपनी बड़ी सी बास्केट को खाली करके वापस जाया करता था. तो वो हमारे जगह पर 2 बार आता था. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. अब जिंगलिंग और थर्ड 2 अलग अलग साउंड्स हैं. जिंगलिंग हो गई म्यूजिकल साउंड और थर्ड हो गई बैम्बू को जब हम ज़ोर से नीचे मारते हैं तो वो जो आवाज़ ज़ोर से धम की आवाज़ आती है वो. तो ये जो दोनों साउंड्स थी उस बैम्बू की, वो हमें हमारी नींद से जगा दिया करती थी और हम फटाफट से उस बेकर से मिलने के लिए भागते थे. एंड ग्रीट हिम, और उसको विश करते थे, उसको हेलो विश करने के लिए हम जाया करते थे. वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या वो उस ब्रेड के पीस के प्यार के कारण था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. द लोफ्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन
द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, वो लॉव्स ऑफ ब्रेड तो हमारी जो मेड सर्वेंट हुआ करती थी घर की, पास्किन या बास्टिन, ये उनके नेम्स बताए हैं, तो उनके द्वारा लाई जाती थी. What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. हमें किस बात की इच्छा होती थी? longed यानी इच्छा होना, wished. हमें तो वो ब्रेड की बची हुई बैंगल्स लेने का मन करता था, विच वी चूज़ केयरफुली, जो हम बड़े ध्यान से वो बची हुई वो साइड पर जो ब्रेड बैंगल्स होती थी हम वो चूज़ करते थे बड़े ही ध्यान से. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी तो वो जो ब्रेड बैंगल्स होती थी वो मीठी ब्रेड, कोई स्पेशल केक या कोई इस तरह का केक बनाया जाता था तो उसकी बची हुई वो ब्रेड बैंगल्स होती थी. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. वो जो बेकर था वो अपनी म्यूजिकल एंट्री किया करता था. किस तरह की म्यूजिकल एंट्री? जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ. स्टाफ मीन्स अ लॉन्ग स्टिक, तो उसकी लंबी सी जो बैम्बू की स्टिक होती थी लंबी सी, उससे वो एकदम से ग्राउंड पर झांग झांग करते हुए म्यूजिकल एंट्री लिया करता था. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंक्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. एक हाथ से वो अपनी वो बैम्बू स्टिक को बैंग किया करता था और दूसरे हाथ से वो अपनी बास्केट को अपने हेड पर संभालता था, सपोर्ट करता था. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. सबसे पहले तो वो घर की जो लेडी होती थी उसको गुड मॉर्निंग विश किया करता था और फिर वो अपनी वो बास्केट को उस वर्टिकल, उस लंबी सी बैम्बू स्टिक पर सपोर्ट करके रख दिया करता था. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम छोटे छोटे बच्चों को तो एक हल्की सी डांट लगाकर, रिब्यूक मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, अ स्कोल्डिंग, थोड़ी सी डांट सी लगाकर जैसे झिड़क देते हैं उस तरह से हमें एक तरफ पुश्ड असाइड, एक तरफ धकेल दिया जाता था और जो लॉव्स होते थे ब्रेड के वो सर्वेंट को, जो हमारे घर की नौकर हुआ करती थी, पास्किन या बास्टिन, उसे दे दिया जाता था. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. हम लोग क्या करते थे, किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर क्या करते थे, जो सड़क के किनारे पर कोई छोटी सी दीवार बनी होती थी, पैरापेट मीन्स वॉल ऑन द एज ऑफ द रोड, वहाँ पर हम चढ़ जाया करते थे. एंड पीप इनटू द बास्केट, पीप मीन्स झांकना, और उस बास्केट में समहाउ किसी तरीके से झांक लेते थे और देख लेते थे कि हमारी ब्रेड बैंगल्स हम कहाँ से उठा सकते हैं. I can still recall the typical fragrance of those loaves. राइटर कहता है मुझे आज भी उन लोव्स ऑफ ब्रेड, उन ब्रेड के पैकेट्स की, उन ब्रेड पाव की आज भी वो जो टिपिकल फ्रेग्रेंस, वो खुशबू होती है. अब बच्चों, फ्रेग्रेंस जो होती है वो अच्छी स्मेल को हम फ्रेग्रेंस कहते हैं और जो बुरी स्मेल होती है हम उसे फाउल स्मेल कहते हैं. तो फ्रेग्रेंस इज ऑलवेज अ गुड स्मेल. लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. तो बड़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या होते थे? लॉव्स ऑफ ब्रेड, बड़े बड़े पाव होते थे, बड़े पाव के टुकड़े होते थे. और बच्चों के लिए क्या होती थी? ब्रेड बैंगल्स. यहाँ आप देख सकते हो दोनों पिक्चर्स में, ऊपर आपको पाव दिखाई दे रहे हैं और नीचे की पिक्चर में आपको बैंगल्स दिखाई दे रही हैं, चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं पाव की. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. तब हम ये भी परवाह नहीं करते थे, अपने ब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे या मुंह धो लें, इतनी भी परवाह हम लोग नहीं किया करते थे. And why should we? और करते भी क्यों? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? अब यहाँ पर राइटर बता रहा है कि किस तरह से आपको याद होगा कि पहले के टाइम में लोग दातुन से अपने दांत साफ करते थे. कुछ लोग आज भी करते हैं जो बहुत ही हेल्दी भी होता है. तो पेड़ से टहनी तोड़कर उसी से दातुन अपने ब्रश साफ, अपने दांत साफ किया करते थे. तो यहाँ पर जो नरेटर है वो ये बता रहा है कि मैंगो लीफ,
मतलब आम के पत्तों को कौन तोड़े, प्लक करे और फिर उन्हें चबाए और अपने दांत साफ करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? फिर राइटर कह रहा है कि ये जरूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। कभी चीते ने कभी अपने दांत साफ नहीं किए। हम जैसे कहते हैं कि शेरों ने कब मुंह धोए हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। बिना दांत साफ किए अगर हम चाय पी लेंगे, गरम गरम चाय ही हमारा मुंह धो देगी, हमारे अंदर से हमारे माउथ को क्लीन कर देगी। एंड सो नाइसली आफ्टर ऑल, सब कुछ इतने अच्छे से हमारे दांत साफ हो जाएंगे। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread. अब उन जो लॉव्स ऑफ ब्रेड की इतनी वैल्यू हुआ करती थी पुराने टाइम में, उन पाव की, उन बेक्ड ब्रेड्स की इतनी वैल्यू हुआ करती थी कि मैरिज में जितने भी गिफ्ट्स दिए जाते थे वो सब मीनिंगलेस। मीन्स अगर वो स्वीट ब्रेड, मीठी पाव जिसे बोल कहा जाता था, अगर वो किसी की शादी में गिफ्ट नहीं दिए तो सारे गिफ्ट्स मीनिंगलेस। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट। अ फीस्ट क्या होती है? ग्रैंड पार्टी। पार्टी इज अ स्मॉल पार्टी। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी सेरेमनी है, तो उसे क्या कहा जाता है? फीस्ट। यहाँ तक कि एक छोटी पार्टी हो या बहुत बड़ी पार्टी हो, वो भी अपना बिल्कुल चार्म खो देगी अगर वहाँ पर ब्रेड सर्व नहीं हुआ। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. एक विलेज के लिए एक बेकर कितना इम्पोर्टेंट है, ये शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। उसकी वैल्यू को हम बिल्कुल बता ही नहीं सकते। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. जो घर की औरतें हुआ करती थी वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट के लिए, शादी एंगेजमेंट के लिए क्या प्रिपेयर करती थी? सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी। अब सैंडविचेस के लिए भी ब्रेड्स चाहिए। केक्स एंड बॉलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। कोई भी फेस्टिवल हो। अब जो गोवा के ज़्यादातर लोग थे वो क्रिश्चियंस थे, क्योंकि वहाँ पर जो पुर्तगीज़ हैं, फ्रेंच पीपल हैं, वहाँ पर वो लोग आकर रहे थे। तो इसीलिए वहाँ का जो रिलीजन है मेनली क्रिश्चियनिटी रहता है, तो वहाँ पर क्रिसमस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और इसीलिए क्रिसमस सेलिब्रेशन में क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है? केक्स एंड बॉलिनास, दैट वर द मस्ट। ये भी एक तरह के केक्स हैं जो क्रिसमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते थे। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसीलिए बेकर का विलेज में होना बहुत ही ज़्यादा असेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चाहे वो सैंडविचेस बनाने हो, केक्स बनाने हो, बोलिनास बनाने हो या फिर स्वीट ब्रेड बनानी हो, सभी के लिए बेक्ड ब्रेड की ज़रूरत होती थी। तो इसीलिए बेकर की फर्नेस का इतना इम्पॉर्टेंट रोल गोवा के विलेज में होता है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. अब उस बेकर की एक पर्टिकुलर ड्रेस भी हुआ करती थी। Peculiar means strange, अजीब सी। वो जो गोवा के बेकर्स थे वो एक नॉर्मल कपड़े नहीं पहनते थे, उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस हुआ करती थी जिसे क्या कहा जाता था? कबई। तो ये ड्रेस का नाम आपने ज़रूर याद करना है। बेकर को कहा जाता था पेदर और उनकी ड्रेस को कहा जाता था कबई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो वो किस तरह की ड्रेस होती थी? वो एक सिंगल पीस फ्रॉक हुआ करता था, थोड़ा ए शेप फ्रॉक जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। कहाँ तक? नीज तक, घुटनों तक पहुँचता था। इस तरह की एक सिंगल पीस फ्रॉक, जैसे हमारे यहाँ पर कुर्ता पहनते हैं तो लेकिन उसकी साइड पर स्लिट्स होती हैं, तो ये फ्रॉक की तरह होता है। उस तरह की उनकी ड्रेस हुआ करती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। लेकिन राइटर क्या बता रहा है कि हमारे चाइल्डहुड में जो बेकर्स हमने देखे वो क्या पहनते थे? वो पहनते थे शर्ट और ट्राउजर्स। ट्राउजर्स मीन्स पैंट्स, लेकिन उनकी जो पैंट्स होती थी वो फुल पैंट नहीं होती थी। वो कैसी होती थी?
वो शॉर्ट पैंट्स होती थी, जैसे हाफ पैंट्स से थोड़ी सी लंबी और फुल पैंट से थोड़ी सी छोटी होती थी, जिन्हें हम आजकल कैपरीज भी कहते हैं। तो इस तरह की उनकी जो पैंट्स होती थी वो होती थी, और वो उसके साथ वो शर्ट पहनते थे। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेदर। और आज भी अगर कोई इस तरह की हाफ पैंट पहनता है जो नीज से, घुटनों से थोड़ी सी नीचे तक होती है, तो उसे क्या कमेंट दिया जाएगा कि ये तो पेदर की तरह इसने कपड़े पहने हैं। The baker usually collected his bills at the end of the month. अब हम बात करेंगे वो जो बेकर था वो अपने बिल्स कब कलेक्ट करता था। मीन्स वो सेम डे अपनी बिल्स नहीं देता था, वो कब लेता था? पूरे महीने के एंड में जाकर वो कलेक्शन लिया करता था। जो सेल उसने पूरा महीना की है किसी एक घर से, तो पूरे महीने की जो पेमेंट थी वो एक महीने के बाद की जाती थी। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल्स। और वो अकाउंट्स मेंटेन कहाँ करता था? वो अपने साथ में कोई कॉपी पेन नहीं रखता था, उनमें वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं रखता था कि किसका कितना बिल है। क्या करता था, हर एक घर के बाहर जहाँ जहाँ पर भी वो अपनी ब्रेड सेल किया करता था, उस घर के बाहर की दीवार पर पेंसिल से उनका बिल बनाता रहता था, उनका अकाउंट बनाता रहता था, और मंथ एंड में वो कलेक्ट कर लेता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। तो डेफिनेटली ये बात कही गई है कि पुराने दिनों में, ओल्ड डेज में, जो बेकिंग थी वो बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था। मीन्स इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मुनाफा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी फैमिली कभी स्टार्व नहीं करते थे, मीन्स कभी भूख से नहीं मर सकते थे। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. मीन्स इतना फ़ायदेमंद वो बिजनेस हुआ करता था कि बेकर की फैमिली, यहाँ तक कि उनके जो सर्वेंट्स भी होते थे वो हमेशा बहुत ही खुश और प्रॉस्पेरस मीन्स अमीर दिखाई दिया करते थे, वेल टू डू दिखाई दिया करते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। प्लम्प फिजिक मीन्स प्लेजेंटली फैट बॉडी, मतलब वो खूब मोटे हुआ करते थे, और एक उनका जो फिजिक था वो एक ओपन टेस्टिमनी था। ओपन टेस्टिमनी मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। मीन्स उनको देखकर ही ये कहा जा सकता था कि ये तो ज़रूर बेकर की फैमिली से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि दिखने में कितने मोटे तगड़े हैं। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. Jackfruit means a kind of vegetable, जैसे हम कटहल कहते हैं। तो आज भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो खूब मोटा तगड़ा है, जैकफ्रूट मतलब कटहल इधर उधर से कटहल की तरह फैल रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे कि ये तो एक बेकर जैसा लग रहा है। तो इस तरह का जो होता था बेकर का, इस तरह से पहनावा होता था, इस तरह की उसकी फिजिक होती थी। तो देखा अपने बच्चों, बेकर की कितनी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी गोवा में, और आज भी बेकर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। So students, this was the pen portrait of a Goan village baker. I hope you understood it clearly. हमने आज देखा कि एक विलेज, गोवा के विलेज के बेकर की क्या वैल्यू होती थी, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह का उनका खाना पीना रहता था, और किस तरह से वो एक बहुत ही एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, और उनकी एक विलेज में, गोवा के विलेज में क्या वैल्यू, क्या इम्पोर्टेंस होती थी। स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। सो द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में हमारे पास 4 सेरेमनीज दी गई हैं, अलग अलग ओकेजन्स, अलग अलग फंक्शंस के बारे में लिखा गया है। और कॉलम 2 में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ब्रेड्स के बारे में लिखा गया है। और आपको ये बताना है कि कौन सी ब्रेड कौन सी सेरेमनी के लिए ज़रूरी है, व्हाट इज़ अ मस्ट। सबसे पहले आपको ये बताना है एज मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट के लिए इन चारों में से कौन सी केक ज़्यादा ज़रूरी होती है।
for a party or a feast. Third is for a daughter's engagement. And fourth is for Christmas. इन चारों सेरेमनीज के लिए, इन चारों में से दूसरी तरफ जो 4 टाइप्स ऑफ ब्रेड्स लिखी गई हैं, केक्स एंड बॉलिनास, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, ब्रेड एंड सैंडविचेस, ये अलग अलग तरह की टाइप्स ऑफ ब्रेड्स दी गई हैं. इन्हें आपने मैच करना है. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपकी बुक में से लिया गया है, तो यू कैन ईजिली नोट डाउन फ्रॉम देयर एंड आई होप यू कैन गिव द आंसर ऑल्सो. लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स. फर्स्ट इज एज मैरिज गिफ्ट. मैरिज गिफ्ट के लिए क्या कंपल्सरी होता है? स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल. एंड द सेकेंड इज फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट. पार्टी या फीस्ट के लिए क्या ज़रूरी होता था? ब्रेड. थर्ड फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट. डॉटर की एंगेजमेंट के लिए, सगाई के लिए क्या ज़रूरी होता था? सैंडविचेस. एंड द फोर्थ इज फॉर क्रिसमस. क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता था? केक्स एंड बॉलिनास. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव रीच्ड द सेकेंड एक्सरसाइज. Which of these statements are correct? कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास आएंगी और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पेदर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स. पुराने दिनों में पेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था. इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? सो व्हाट इज द आंसर? एनी गेसेस? इट इज करेक्ट. पेदर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था. नेक्स्ट स्टेटमेंट, पेदर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज. क्या पेदर्स आज भी गोवन विलेजेस में एग्जिस्ट करते हैं? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इट्स ऑल्सो करेक्ट. आज भी गोवा के विलेजेस में पेदर्स एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द पेदर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज. पेदर्स पुर्तगीज लोगों के साथ वापस चले गए. इज इट करेक्ट? नो, इट्स इनकरेक्ट. पेदर्स आज भी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पेदर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. पेदर्स आज भी वही पुरानी सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक पहनते हैं. इज इट राइट? इज इट करेक्ट? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. अब वो क्या पहनते हैं? एक शर्ट और हाफ पैंट्स पहनते हैं जो नीज से नीचे तक होती हैं. राइट? द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन द ओल्ड डेज. पुराने समय में गोवा की लाइफ में ब्रेड और केक्स का एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था. एंड व्हाट्स द आंसर? लेट्स सी. इट्स करेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे ब्रेड और केक्स. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. परंपरागत ब्रेड बेकिंग आज भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, एक बहुत ही लाभकारी बिजनेस है. ऐसा है या नहीं? करेक्ट और इनकरेक्ट? नो, इट्स इनकरेक्ट, क्योंकि उसकी जगह आज बहुत तरह की, अलग अलग तरह की मॉडिफाइड बेकिंग आ चुकी है. तो ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है. सेवेंथ इज पेडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स. आज के समय में पेडर्स और उनकी जो फैमिलीज हैं वो भूखी मर रही हैं. क्या ये सही है या नहीं? इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. अगर वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि वो स्टार्व कर रहे हैं, यानी कि वो बिजनेस अभी भी चल रहा है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट वी विल डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर बेकर्स स्पेशली फाउंड इन इंडिया? ए गोवा, बी कर्नाटका, सी असम और डी ऑल ऑफ द अबव. इंडिया में बेकर्स कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में, कर्नाटका में, असम में या इन तीनों जगहों पर? सो व्हाट्स द आंसर? इट्स गोवा.
Right. Next question. Who ruled over Goa? गोवा पर किसने राज किया? British, Portuguese, French or Dutch? Yes, hurry up students. Guess the answer. And the answer is Portuguese. Right. So, next question is, in the olden days, baker in Goa was known as, पुराने दिनों में बेकर को क्या कहा जाता था? A. Baker, B. Pader, C. Kabai or D. Bolinas? So hurry up students, guess the answer. And the right answer is B. Pader. Okay, the next question. What did the children like to buy? बच्चे बेकर से क्या खरीदना पसंद करते थे? A. Bread, B. Bangle bread, C. Bowl और D. Cake? ब्रेड लेना चाहते थे, बैंगल ब्रेड खरीदना चाहते थे, बोल या फिर केक? एंड द राइट आंसर इज बैंगल ब्रेड. ओके स्टूडेंट्स. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेकर्स यूज्ड टू वेयर. बेकर्स क्या पहना करते थे? ए. कबई, बी. बॉल, सी. पेदर या डी. ऑल ऑफ द अबव? उनकी ड्रेस को क्या कहा जाता था? एंड द आंसर इज ए. कबई. एंड हियर इट लुक लाइक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा? अ बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर कौन है? ए. लूसियो रॉड्रिक्स, बी. लोकेश एब्रॉल, सी. अरूप कुमार दत्ता और डी. Gavin Maxwell? And the right answer is Lucio Rodriguez. So this was the lesson, A Baker from Goa, and I hope you understood the lesson completely and enjoyed the video. Thanks for watching the video. With me, Dr. Ashima Grover, lecturer in English. Keep studying. Bye for now. See you in the next video.